Justice. We want justice. We want justice. We want justice. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. LG Saaf. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. We want justice. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma. LG Saaf. LG Saaf. LG Saaf. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. LG Saaf. LG Saaf. LG Saaf. We want justice. We want justice. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. LG Saaf. LG Saaf. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. LG Saaf. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate we want justice. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. LG Saaf. LG Saaf. LG Saaf. LG Saaf. We want justice. We want justice. We want Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. We want justice. We want justice. LG Saaf. LG Saaf. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu. We want justice. We want justice. We want Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. LG Saaf. LG Saaf. LG Saaf. LG Saaf. Advocate Abhinu Sharma ji. Advocate Abhinu Sharma ji. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Advocate Abhinu Sharma. We want justice. 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 मेरा नाम एजाज अहमद वानी है और मैं कंगन से. Actually, we have gathered here to for a couple of reasons. The first and the foremost reason for which we have assembled here is that we want to thank Abhinav Sharma ji, who played a key and instrumental role in unearthing this scam of fire and emergency services. And secondly, we want to press upon the government that they must speed up the process of investigation. If at all there is any investigation still to be done, it should be done on priority basis. It should be done quickly, so that the guys who are still working in the department and those who got selected by resorting to wrong means, by getting involved into schemes. There are plenty of guys who are still working in the department. They should get sacked as quickly as possible. This is something which we want. What is your demands? Our demand is quite simple. We want the process of investigation to get speeded up as quickly as possible. And the guys who have been protesting for years, they should get justice. And the justice is simple. Either they should get absorbed, or if at all there is not any other way, if they can't get absorbed, there must be another exam. That is the final solution, I guess. पहली डिमांड यही है कि जो लड़के सड़कों पे है, जो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, जिनका बहुत ही ज्यादा टाइम जाया हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए. और इंसाफ उनके लिए यही है कि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं. उनके लिए अगर गवर्नमेंट मतलब जॉब पॉलिसी बना लेता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको वेलकम करेंगे. दूसरी बात, अगर जॉब पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट को लगता है कि मैं आपको ये भी कहूँ, आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वी विल नॉट बेग फॉर जॉब्स. हम ऐसा नहीं है. अगर हम इंटेलिजेंट लड़के हैं, हम एग्जाम देने के लिए भी तैयार है, मगर एग्जाम होना चाहिए विद इन द स्पेस ऑफ 1 or 2 months, सो दैट हमारा टाइम जो है वो जाया ना हो. और सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि जॉब पॉलिसी बनाई जाए. दूसरी बात, अगर जॉब पॉलिसी गवर्नमेंट के पास ना है तो एग्जाम किया जाए, और वो भी बहुत ही कम अरसे के अंदर एग्जाम किया जाए, ताकि हमारा जो ऑलरेडी कीमती टाइम जाया हुआ है वो टाइम हमारा जाया ना हो. हमारी भी फैमिलीज है, हमारी भी सोशल लाइफ है. हम बहुत ही ज्यादा नुकसान हमने ऑलरेडी झेला है, तो हम ये नहीं चाहते कि आगे हम और नुकसान कोई झेलें. देखिए, हमारे साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान है. हम गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा करते हैं कि इन केस जो भी गवर्नमेंट का फ्यूचर का मैं यूँ कहूँ कि उनका प्रोग्राम होगा, उनका फैसला होगा, हम गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइम हमारा जो 5 साल हमारे ज़ाया हुए हैं उनको अंडर कंसिडरेशन रखा जाए, और उस टाइम हमारी जॉब में एनहांसमेंट हमें 5 साल के और दे उस टाइम, ताकि हमारा जो ऑलरेडी नुकसान हुआ है उसे कंपनसेट समाव किया जाए. हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हमें एक्सटेंडेड 5 साल फिर से मिलने चाहिए जॉब में, ताकि उससे हमारा नुकसान की जो है वो भरपाई हो.
और लेट मी टेल यू वन थिंग क्वाइट ऑनेस्टली, ये वो एग्जाम था जिसने ट्रॉमेटाइज किया हम लड़कों को, जिसने मेंटली क्रिपल किया हम लड़कों को। हमें सिस्टम से बहुत ही ज्यादा एतबार उस टाइम हटा था। हम एडजस्ट हमारे लड़के हुए होते कहीं ना कहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के हैं, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि एक बार जब इन्हें डसा गया उसके बाद हमें गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो किसी और एग्जाम के लिए अपने आप को मतलब तैयार ना कर सके, क्योंकि हमें पता था कि एग्जाम्स में धांधली होती है बार बार रिपीटेडली। ये खाली हमारा एग्जाम नहीं था जिसमें धांधली हुई, बल्कि FAA और बाकी एग्जामों में, SI के एग्जामों में, जल शक्ति के एग्जामों में यहाँ पे हमारे लड़कों को ट्रॉमेटाइज किया गया, ये मतलब धांधलियां कर करके। और इससे होता क्या है, इससे हमारे इंटेलिजेंट बच्चों का वो जो कॉन्फिडेंस है वो शेक कर जाता है। बाद में ये होता है कि वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो नतीजा यही है कि ये बच्चे, मैं फिर से कहूँ, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए होते, मगर नतीजा ये हुआ कि जब इन्हें एक बार डसा गया तो इन्हें सिस्टम से कंप्लीटली उनका जो है वो भरोसा उड़ गया था उस टाइम पे। जी, मेरा नाम शेख खुर्शीद है, मैं छतरगल में रहता हूं सर। हम इस बात को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम एक बार फिर गवर्नमेंट को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि हमारे साथ अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ। ये 13 साल की कहानी है। 13 साल की कहानी, 60,000 फैमिलीज की ये कहानी है। 13,000 फैमिलीज का जो ये कितना टाइम बनता है, तो उस हिसाब से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। हम उस टाइम का मुआवजा चाहते हैं बस गवर्नमेंट से। हमारे साथ ये हुआ था, 3 बार हमें फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट लिया। तीनों बार हम लड़ते आए, एक 2 साल एक बार मतलब एक लड़ाई लड़ने में लड़े और इस लिस्ट को कैंसिल करवाना पड़ा। तो इस बार हम 5 साल के बाद इस लड़ाई में मतलब फिर से जीत हासिल कर रहे हैं। आखिरकार गवर्नमेंट को ये मैसेज मतलब समझ क्यों नहीं आती, गवर्नमेंट क्यों नहीं समझते कि ये लोग अगर बार बार आते हैं, बार बार इस स्कैम को साबित करते हैं, तीसरी बार अब ये इस स्कैम को साबित कर रहे हैं कि इनके साथ हम कैसे इंसाफ करें। और वो अपने सिस्टम में बैठे हुए चोरों की तरफ उनको क्यों नहीं निकाल पाते हैं, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे कि सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है। और हमारा पब्लिक जो हमारे एस्पेरेंट लोग हैं, इनको बार बार परेशान क्यों किया जाता है, परेशानियों में इनकी जिंदगियों को खत्म क्यों किया जाता है। अब हम इस सिलसिले में आए हैं यहाँ पे कि LG साहब ने जिस तरीके से इस पे काम किया, हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और सबसे पहले हम एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और LG तक बात पहुंची। अगर हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी नहीं होते, मुझे नहीं लगता हमारा साथ देने के लिए तो कोई तैयार था, या LG साहब तक हमारी ये बात पहुंच जाती। क्योंकि हमारे पास हमारे यहाँ के इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे डिपार्टमेंट में, चाहे गवर्नर ऑफिस में भी कुछ लोग बैठे थे जो मिसलीड कर रहे थे गवर्नर साहब को कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तब मेरिट में फॉल नहीं हुए थे। कि ये एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ही है जिसकी वसादत है, जिसके माध्यम से हमारे जो ये एविडेंसेस है गवर्नर साहब ने रियलाइज किए, जिसके लिए हम उनके लिए मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे। हाँ, हमें पूरा भरोसा है LG साहब पे, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी जब तक हमारे साथ हैं, और LG साहब जब तक संगीन मतलब एक्शन लेते हैं इन चीजों पे, जो हम चीजें उनको दिए हैं या दे देते हैं, और उस हिसाब से, जिस हिसाब से, या आप नहीं समझते हैं कि जिस हिसाब से 103 लोगों की टर्मिनेशन बाहर आ गई कि हम हमारी जो डिमांड से फुलफिल नहीं हो रहे हैं, हम नहीं कह सकते हमारी डिमांड्स फुलफिल हो रहे हैं। ऑलरेडी जो रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट की तरफ से बाहर है, उसमें ऑलरेडी जो रिकमेंडेशन से ऑलरेडी वाजिया है कि इसमें पेपर लीकेज और बाकी इश्यूज भी है। टर्मिनेशन अलग वहां पे दिखाई गई है और बाकी इश्यूज को भी वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो उन रिकमेंडेशंस को देख के हम RK गोयल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इंसाफ के सारे रास्ते खुला दिए हैं वहीं पे बेस लेवल पे ही, जब उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट की।